Hello students, I hope all of you are fine. Today we are going to start conjunctions. So let's start. First of all, we should know that what conjunctions are. Conjunctions are joining words which help to join noun, phrases, clauses और sentences. Conjunctions क्या होते हैं? Joining words होते हैं जो किसी भी टू नाउन्स को, phrases को, clauses को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. कंजक्शंस जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड इज कोरिलेटिव. वी विल रीड अबाउट these conjunctions in brief. So let's start with the coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are that conjunctions that connect two words or group of words of the same grammatical class. जो सेम ग्रामेटिकल क्लास के वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? लाइक फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, एटसेट्रा. Now let's see the examples. First of all, connect two nouns like Naina and Rajiv have always stood up for the right cause. Here are two nouns Naina and Rajiv और इनको हमने कैसे connect किया है? With the help of and. The second example is the baby crawled and reached the end of the room. कि जो बेबी है वो क्रॉलिंग कर रहा है और वो कहाँ पहुँच गया है? एट द एंड ऑफ द रूम. हेयर आर 2 phrases and these are connected with the help of conjunction and. The next example is they were angry with us and I could almost feel their angry eyes looking deep into us. Here are 2 clauses. First is they were angry with us and second is I could almost feel their angry eyes looking deep into us. And these clauses are connected by conjunction and. Listen students, we have a trick to learn the coordinating conjunctions. That is fanboys. Fanboys means F stand for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y yet, S so. So these are coordinating conjunctions. Now we will read some important conjunctions. First of all, let's start with and. And is used to connect similar qualities. जब हमें किसी भी 2 similar qualities को या similar things को connect करना हो तो हम and का use करते हैं. Now let's see the examples. Here are some sentences given to you. Read the sentences very carefully. The first one is I like oranges. I like apples. Here are 2 sentences. First is I like oranges and second is I like apples. So what's the common thing in these 2 sentences? My choice. कि मुझे क्या पसंद है? Apple, oranges. मुझे दोनों चीज़ें पसंद हैं. Here we can use and. I like oranges and apple because we are talking about some common thing. हम एक कॉमन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पसंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसे with the help of and कनेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड इज she is sweet, she is charming. कि वो स्वीट है और वो चार्मिंग है. Here also what's the common? कि एक ही गर्ल की हम 2 क्वालिटीज़ बता रहे हैं. So here also we can use and. She is sweet and charming. The third one is John is going for party. Jia is going for party. Here also हमारे पास कॉमन क्या है कि वो दोनों पार्टी के लिए जा रहे हैं. दोनों सेंटेंसेस में ये कॉमन है ना, तो हम इनको एंड से कनेक्ट कर सकते हैं. John and Jia are going for the party. Now come on the next, that is but. It show contrast between 2 sentences. Contrast means कोई भी ऐसे 2 sentences जिनमें कोई similarities नहीं होती. ठीक है. Used to join sentences which are opposite in meaning. उन sentences को join करने में हम but का use करते हैं जो बिल्कुल ही
अपोजिट हों, ठीक है, मीनिंग में अपोजिट हों। तो आपको एग्जाम्पल से ये ईजिली क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही इज़ ओल्ड, ही इज़ एक्टिव। यहाँ पे भी हमें 2 सेंटेंसेस गिवन है। फर्स्ट इज ही इज़ ओल्ड, सेकेंड ही इज़ एक्टिव। अब जो ओल्ड पर्सन है वो मेनली एक्टिव नहीं होते ना, तो इसमें हमने 2 अपोजिट, यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट हो गया कि बिल्कुल अपोजिट जो है उसकी क्वालिटी है कि वो ओल्ड है फिर भी वो एक्टिव है। सो हेयर वी यूज़ बट। द सेकेंड वन इज ही वॉज पुअर, ही वॉज ऑनेस्ट, कि वो गरीब है और ऑनेस्ट है। सो हेयर ऑल्सो वी यूज़ बट। थर्ड वन इज वी मेट एट द स्टेशन, ही फेल टू रिकोगनाइज मी, कि हम स्टेशन पर मिले थे, मुझे पहचान नहीं सका, वो मुझे पहचानने में वो फेल हो गया, ठीक है। तो इसमें भी हम बट यूज़ करेंगे। अब हमने इन सेंटेंसेस में बट क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 जो है ऑपोजिट मीनिंग, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा था दोनों सेंटेंसेस में, इसलिए हमने यहाँ पर बट यूज़ किया कि वो मुझे स्टेशन पर तो मिला था पर उसने मुझे पहचाना नहीं। द नेक्स्ट कंजक्शन इज फॉर। फॉर इज़ यूज टू स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर स्टेटिंग द पर्पस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्शन। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी एक्शन का पर्पस बताना हो तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। यूज टू टॉक अबाउट रीजन्स और कॉजेज। फॉर का यूज़ अब हम कोई रीज़न बताते हैं या कोई कारण बताते हैं उसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। आई बॉट अ न्यू बैग फॉर माई अपकमिंग ट्रिप। इट मीन्स दैट मैंने एक नया बैग खरीदा, किसके लिए, मेरी अपकमिंग ट्रिप के लिए। सो हेयर इज़ द रीज़न ऑफ एन एक्शन, उसने जो काम किया उसका रीज़न हमें बताया गया है। सो हेयर वी हैव यूज्ड फॉर। नेक्स्ट इज we listened eagerly for he brought news of our families, कि हम बड़े ही eagerly उसे सुन रहे थे। for he brought news of our families, कि वो हमारी families की न्यूज़ लेके आया था। इसमें भी एक आपको रीज़न गिवन है क्यों सुन रहे थे उसे ध्यान से, क्योंकि वो families की न्यूज़ लेके आया था। so that's why we have used for here. next is or. और इज़ यूज फॉर चॉइस बिटवीन द 2। जब हमें किसी 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो हम और यूज़ करते हैं। सी द एग्जाम्पल। आई विल गो शॉपिंग और कैंपिंग, कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगा या कैंपिंग के लिए जाऊँगा। डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, आप क्या लेना पसंद करोगे, कॉफ़ी और टी। इसमें चॉइस है कि आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे या टी लेना पसंद करोगे। That's why we have used or here. Now here's a practice exercise for you. All of you have to identify and underline the conjunctions in the following sentences. All the students will do it by yourself and then check the answers. If you have any problem, you may ask to me. I hope all of you have understood the concept of coordinating conjunctions. Thank you, students.